एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इफ़त। आज का टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। बच्चे अमूमन इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सो आपने बहुत गौर से इसको समझना है और सुनना है। बहुत आसान है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पहले हम नॉन पोलर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि अभी तक जो ये चैप्टर है 4th, इसमें हमने क्या कुछ पढ़ा। केमिकल बॉन्ड, जब पहला जो क्वेश्चन था, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड to gain stability. And how they gain stability? By following the octet and duplet rules. और octet and duplet rules क्यों follow करते हैं? In order to get the electronic configuration of the noble gases. और noble gases की electronic configuration atom क्यों follow करना चाहते हैं? Because the noble gases are stable. They do not lose or gain electrons. Their valence shells are complete. ठीक है। सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स और विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ सब्सटेंस। दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। देन ऑक्टेट रूल attaining of 8 electrons in the valence shell is known as octet rule. Duplet rule, attaining of 2 electrons in the valence shell is known as duplet rule. Then bonding electrons. The valence shell electrons which are involved in the formation of the chemical bond, those electrons are called bonding electrons. Then ionic bond. The ionic bond, it is formed by the complete transference of electron from one atom to another atom. Then covalent bond, the type of the bond which is formed due to the mutual sharing of the electrons between the atom, that is called covalent bond. फिर हमने पढ़ा था bond pair. Bond pair is the pair of the electron which is involved in the formation of a chemical bond, that is known as bond pair of electron. Then we have read about the types of covalent bond. There are 3 types of covalent bond: single, double and triple. Single covalent bond is formed when each bonded atom contributes 1 electron and one bond pair is formed. It is represented by a single line, small single line between 2 atoms. Then double covalent bond, it is formed when each bonded atom it contributes 2 electrons. So 2 bond pairs are formed. It is known as double covalent bond. It is represented by 2 small lines between the bonded atoms. Then triple covalent bond, it is formed when each bonded atom it contribute 3 electrons and 3 bond pair are formed. That is known as triple covalent bond. और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 3 स्मॉल लाइंस बिटवीन दी बॉन्डेड एटम्स। फिर हमने इनकी एग्जांपल्स की थी सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। देन वी रेड अबाउट डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इट इज़ द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ डोनेटेड बाय one of the bonded atom. The atom which donates the pair of electron, that is called donor, and which accepts the pair of electron, that is called acceptor, and it is represented by drawing a small arrow between the donor and the acceptor. पे हमने इसमें एग्जांपल की थी
और फिर हमने लोन पेयर का भी पढ़ा था, द नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट ऑन एन एटम दैट इज़ नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक विच इज़ प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया। फिर इसकी एग्जांपल्स की थी। होपफुली यहाँ तक आपको अगर ये सब कुछ क्लियर है तो अब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अगर आपको पिछले टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हैं। सो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं फिर इसकी एग्जांपल करेंगे। इट इज़ द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड is formed between similar, की बुक में यहाँ पे होमो लिखा हुआ है, होमो मीन्स सेम, सिमिलर एटम्स the shared pair of electron is attracted by both the atoms with equal force and it remains in the center of bonded atoms. इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में अपनी वर्डिंग में लिखा है कि when a covalent bond is formed between similar atoms, the shared pair of electron it is attracted by both the atoms equally with equal force या equally, तो क्या होगा जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होगा, वो सेंटर में रहेगा एटम के, वो किसी भी एक एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो एटम्स जो हैं वो सेम होंगे, सो दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, रीज़न क्या है, both the atoms have same electronegativity. एग्जाम्पल करते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमने फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ी थी। हाइड्रोजन जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये म्यूचुअली इस शेयर करेंगे और ये क्या बन जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दी हाइड्रोजन एटम्स। अब क्या है कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये हाइड्रोजन एटम इस शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये वाला हाइड्रोजन एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल रिमेन इन दी सेंटर, ये इन दोनों के सेंटर में रहेगा, यानी कि दे आर अट्रैक्टिंग दिस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इक्वल फोर्स या इक्वली, आपके बुक में जो वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये सेंटर में ही रहेगा, ये किसी की भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ नोन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम साथ क्या बोलते हैं, प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये आपकी बुक में वर्ड यूज़ हुआ है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी एंडिंग में आप देखें, दिस इज़ रिटन ओवर देयर प्योर कोवलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल करते हैं क्लोरीन की। 2 क्लोरीन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, हर क्लोरीन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे
ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा, एक ये करेगा, और म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द क्लोरीन एटम्स. सो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल रिमेन इन दिस सेंटर ड्यू टू द इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ये क्लोरीन इस पे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी और ये क्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो क्या करेगा, विथ सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम होगी, और क्योंकि इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्लोरीन एटम सिमिलर हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी सेम होगी. सो ये हमने थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चैप्टर जो लास्ट टॉपिक था वो पढ़ा था, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इसकी जो एबिलिटी है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो, और इसकी एबिलिटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, दैट इज सेम. So that's why this pair of electron it will remain in the center. So such a bond is known as non-polar covalent bond. इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और प्योर कोवलेंट बॉन्ड. यहाँ ये क्लियर हो गया आप लोगों को, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक तो इसी यही वाला ही है, यानी कि जो नेक्स्ट इसका पार्ट है दैट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड. हाउ द पोल्स आर फॉर्म या हाउ द पोलैरिटी इज डेवलप्ड. पोलैरिटी या पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक ही बात है. पोलैरिटी के वर्ड आए या पोलर कोवलेंट बॉन्ड आए एक ही बात है. पोलर कोवलेंट बॉन्ड सबसे पहले डेफिनेशन, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड is formed between two different hetero लिखते हैं atoms then the shared pair of electron is not attracted equally by both of the atoms. This is due to different electronegativities the atom which has more यहाँ तक आप लोग कर लें, इसकी फिर आगे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन है. ये तो पहले डेफिनेशन हम लोग कर लेते हैं. व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट atoms then the shared pair of electron is not attracted equally by both the atom due to the difference in the electronegativity values or this is due to the different electronegativities. Such a bond is known as polar covalent bond. इस तरह
तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें एग्जांपल हम बताएंगे, फॉर एग्जांपल द बॉन्ड बिटवीन HCl। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल को हम डिटेल से करते हैं और क्यों बनता है, क्या रीज़न होते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर तो डेफिनेशन आ गई शॉर्ट तो आप ये लिखेंगे और इसको आपने ड्रॉ करके कैसे बताना है। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको स्लाइटली जो है क्लोरीन की तरफ दिखा देना है और इसके ऊपर प्लस चार्ज हम दिखाते हैं और इसके ऊपर माइनस। ये मैंने अभी यहाँ लिखा है, अभी मैं इसको समझाती हूँ आपको सारा। सिर्फ ये अगर शॉर्ट में आए तो आपने एग्जाम्पल देनी है तो आपने इसको ऐसे ड्रॉ करके बताना है। इसको आप नोट कर लें और यूँ करके जो डिफरेंट के दरमियान है। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन different atoms, then the shared pair of electron, it is not attracted equally by both the atoms. This is due to the difference in the electronegativity values. For example, such a bond is known as polar covalent bond. For example, the bond between HCl. ठीक है, अब हम इसकी डिटेल करेंगे, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ और ये कैसे बनता है। Now when a covalent bond is formed between two different atoms, then the atom which is more electronegative will attract the shared pair of electron towards itself then the atom which is more electronegative will attract the shared pair of electron towards itself more as compared to the other. क्या होता है कि जब डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है तो जो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो शेयर्ड पेयर जो है इट स्लाइटली मूव्स टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज़ कम्पेयर टू दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन HCl इसका इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 अब क्या होगा, ये म्यूचुअली शेयरिंग इनके दरमियान होगी 1 2 3 4 5 6 और ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट स्लाइटली मूव्स टूवर्ड्स द क्लोरीन एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। वाई? बिकॉज क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। इसको आप देखें, इसको आप ड्रॉ कर लें या नोट कर लें। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है हाइड्रोजन की
En स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, हाइड्रोजन की 2.2 है और क्लोरीन की 3.2 है। इट इज़ रिटन इन योर बुक, इसमें भी दी हुआ है टॉपिक में भी, और ये चैप्टर नंबर 3 जो है 3 हमने पढ़ा था उसके लास्ट वाले टॉपिक में भी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब आप ये वैल्यू देखें 3.2 यानी कि क्लोरीन की ज़्यादा है, सो इट अट्रैक्ट्स दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ मोर एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। तो ये शेयर्ड पेयर होगा, ये स्लाइटली किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स क्लोरीन। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव एंड द पार्शियल नेगेटिव चार्ज इट अपीयर्स ऑन दी क्लोरीन एंड दी हाइड्रोजन। कैसे लिखेंगे आप इसको? अब ये जो शेड पेयर है ये स्लाइटली क्लोरीन की तरफ है, तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, और इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज डेल्टा साइन, जो कि बच्चों ने काफ़ी पूछा हुआ था कि डेल्टा साइन क्या होता है, कि डेल्टा साइन क्यों अपीयर होता है। इट इज़ अपीयर्ड when the more electronegative element it attracts the shared pair towards itself as more as compared to the less electronegative element। तो इसके ऊपर क्या होगा कि पार्शियल नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, तो इसको क्या हम कहते हैं, डेल्टा साइन। डेल्टा साइन हमें ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो शेयरिंग हुई हुई थी, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो बॉन्ड बना है इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इट शिफ्ट स्लाइटली टूवर्ड्स द क्लोरीन मोर एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट है एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। एज ए रिज़ल्ट a partial negative and the partial positive charge it appears on the chlorine and the hydrogen। partial क्यों कहते हैं कि अगर हम complete कहेंगे तो वो तो फिर आयनिक बॉन्ड बन जाता है, जिसमें कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था रिव्यू में कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, दूसरा गेन कर लेता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन के, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। अब इसमें क्या हुआ कि इट हैज़ डेवलप्ड द कोवलेंट बॉन्ड, इट हैज़ डेवलप्ड आयनिक करेक्टर। आप क्या लिखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड हैज़ डेवलप्ड आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर मीन्स कि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं, टू पोल्स बन गए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड जो है वो कोवलेंट ही रहेगा, इट विल नॉट बिकम आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें क्या हुआ कि सिर्फ शिफ्टिंग हुई है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो किस एटम की तरफ शिफ्ट हो गया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें एबिलिटी है कि वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर एटम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी or the force by which an atom it attracts the shared pair of electron towards itself। So chlorine being more electronegative, ये क्या करेगा, इस shared pair of electron को अपनी तरफ attract करेगा। as a result it gets a partial negative charge, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो इसको हम क्या कहते हैं कि इसने आयनिक करेक्टर डेवलप कर लिया, आयनिक बॉन्ड नहीं बना। सो टू पोल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ पोल्स। डिफरेंट एटम्स के दरमियान जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होता। जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उस शेड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो शेड पेयर स्लाइटली उसकी तरफ, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली उसकी तरफ चला जाएगा, जिसके नतीजे में, जिसके रिज़ल्ट में उसके ऊपर क्या आएगा,
पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव या स्मॉल नेगेटिव या स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम इस साइन से शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं डेल्टा साइन। अगर आपको क्वेश्चन आता है बुक में ये लिखा हुआ है जो पैराग्राफ, वहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा साइन इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द partial positive and the partial negative charge due to the difference in the electronegativity values। जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, शेड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एंड इट गेट्स दी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एटम के ऊपर क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो इसको अब आपको होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। टू और थ्री एग्जाम्पल्स जो हैं आपकी बुक में, दो तीन एग्जाम्पल्स और दी हुई हैं। एक दो एग्जाम्पल्स और HCl की हमने कर ली, और जो ड्रॉ किया हुआ है वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। The bond between water and hydrogen fluoride, water H and OH, water इसका फार्मूला H2O। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन के हो गए। अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा कि शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो शेयर्ड पेयर है ये इस तरफ चला जाएगा ज़्यादा। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा साइन, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। सो द कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द वाटर दैट इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम दूसरी एग्जांपल जो है उसको करते हैं। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है दैट इज़ 3.4 और हाइड्रोजन की 2.2 होती है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन HF फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और इसकी क्या होती है 2.2, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन दी पीरियोडिक टेबल। तो अब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, जब ये बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा कि this shared pair of electron it shifts slightly towards the fluorine, so it gets, इसको हमने ये लाइन से शो किया, it gets the partial negative और ये इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। सो दिस बॉन्ड इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन H and F और हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो जो लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें क्या डिस्कस हुआ है, अब हम उसको भी कर लेते हैं कि इफ़ वी नो दी difference, if we know the values of the electronegativity or electronegativity values of the atom, we can predict the chemical bond के whether it is ionic or
covalent. Prediction of type of chemical bond. If the difference between of electronegativity of the atoms is less than 1.7, तो फिर बॉन्ड कौन सा होगा? द बॉन्ड विल बी कोवलेंट. And if the difference of electronegativity of the bonded atoms is more than 1.7, then bond will be ionic bond. So in this way we can predict that which type of bond is present between the atoms. अगर डिफरेंस जो है 1.7 से कम होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड. और अगर 1.7 से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड. 1.7 से ऑनवर्ड्स आगे 1.8, 1.9 एंड सो ऑन, तो वो क्या होगा? आयनिक बॉन्ड. और अगर 1.7 तक होगा और 1.7 से कम होगा तो बॉन्ड क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा. सो अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए. अगर ये शॉर्ट में आता है, शॉर्ट में अमूमन डेफिनेशंस आती हैं. पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. Non-polar covalent bond is the type of the covalent bond which is present when the covalent bond is formed between the similar atoms. Then the shared pair of electron, it is equally attracted by the bonded atoms. It will remain in the center. So because they have same electronegativities, so that bond is known as non-polar covalent bond. इसमें अगर एग्जाम्पल दे दें H2 की, Cl2 की, F2 की, O2 की, N2 की, कोई भी दे दें. इसके बाद polar covalent bond, if the covalent bond is formed between different atoms, then the shared pair of electron, it is not attracted equally by the bonded atoms. Then the type of the bond is the polar covalent bond. उसमें आप एग्जांपल देंगे HCl की, और ये क्यों होता है, उसमें रीज़न क्या है? The more electronegative element it, or the more electronegative atom, it will attract the shared pair towards itself more as compared to the less electronegative element. As a result, it gets a partial negative charge and the other atom it gets a partial positive charge. So इसको हम represent करते हैं इस साइन से, delta negative and the delta positive. ये जो what is the meaning of the delta sign? The delta sign indicates the presence of small negative, small positive, or the partial negative, the partial positive charges on the atoms. The atom which is more electronegative, it gets the small negative charge, and the other atoms it gets the small positive charge, and it is represented by the delta sign. Or why does it appear? आप इसका क्या रीज़न बताएंगे? इट अपीयर ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ दी बॉन्डेड एटम्स. उसके बाद HCl की आपने एग्जांपल बतानी है, उसको ड्रॉ करके बताना है. और उसके बाद एग्जांपल डिस्कस हुई हुई है वाटर की और HF की, उसको आपने बताना है. फिर है प्रेडिक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड
If the electronegativity difference between the bonded atom is less than 1.7, the bond will be covalent, and if it will be more than 1.7, then it will be ionic. लॉन्ग में अगर आएगा तो आपने पूरा लिखना होगा, और अगर शॉर्ट में आएगा जिस तरह से क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर देंगे। नोट्स में बड़ा अच्छा ये कम्प्लीटली लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में, और शॉर्ट भी अलग-अलग पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, डेल्टा साइन क्या होता है, प्रेडिक्शन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, प्रेडिक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द बॉन्ड, ये सब कुछ अलग-अलग डिस्कस हुआ है विद हेडिंग्स। आप वहाँ से इसकी गाइडलाइन ले सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको वहाँ से पढ़ें। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पोलर और नॉन कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का डिफरेंस भी आता है, वो आपने लाइन सेंटर में ड्रॉ करके एक साइड पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड लिखेंगे, दूसरी साइड पे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको लिखेंगे कि किस तरह से बनता है, और उसमें साथ आपने एग्जांपल्स जो हैं वो बतानी है। सो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, इंशाल्लाह ये अब आपको समझ आ जाएगी। सो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।